السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو آئیے ہم دوسرے لیکچر کو شروع کرتے ہیں. لیسن نمبر 19 پڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے اس کو آپ کی ذہن میں ہے ابھی ہم لیسن نمبر 19 پڑھ رہے ہیں. ابھی ہم نے ایک لیکچر میں صرف کچھ چیزیں پڑھی اور ایک امپورٹنٹ گرامر کا پوائنٹ سیکھا. وہ ہے 3 سے لے کر 10 تک عدد معدود کا معاملہ. تو ہم یہاں پہنچے تھے. المدیر پوچھ رہا ہے. آگے بڑھے ہم. ہلو آر یو ریڈی؟ شاباش. المدیر جدید ان کی جمع آتی ہے جددن. جدید ان کی جمع کیا آتی ہے؟ جددن جیم پہ جو دال پہ دو جددن. اور قدیم ان کی جمع آتی ہے قدامہ. کیا آتی ہے؟ قدامہ. قدیم ان کی جمع کیا آتی ہے؟ قدامہ. سبھی لوگ بولا کریں قدامہ. جددن اور جدید ان کی جمع جددن اور قدیم ان کی جمع قدامہ. المدیر پوچھ رہا ہے کم طالباً فیہ من اوروبا. کم طالباً فیہ من اوروبا. اس میں یعنی آپ کی کلاس میں فیہ اس آپ کی کلاس میں کتنے لڑکے ہیں؟ کہاں سے؟ یورپ سے. فرام یورپ سے. بہت اچھا. فرام یورپ سے. المدیر جواب دیتا ہے فیہ اس میں ہے خمسۃ طلاب 5 اسٹوڈنٹس من انگلترا فرام انگلینڈ. بس فرام انگلینڈ. اگر ہم بریگزٹ کی بات کریں تو اب انگلینڈ کے بارے میں تو مشکوک ہے بات. اب وہ پتہ نہیں آئے گا اس میں کہ نہیں آئے گا, لیکن کتاب بہت پہلے لکھی گئی ہے. فی خمسۃ طلاب 5 اسٹوڈنٹس. مذکر ہے تو خمسۃ آ گیا. وثمانیۃ طلاب اور 8 اسٹوڈنٹ من المانیہ فرام جرمنی. وستۃ طلاب اور 6 اسٹوڈنٹ من فرنسا فرام فرانس. وتسعۃ طلاب من اليونان اور 9 اسٹوڈنٹس کہاں سے ہے؟ من اليونان. یونان کس کو بولتے ہیں؟ گریس کو. بہت اچھا. یونان بولتے ہیں گریس کو. گریس سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ گریس سے 30 آتا ہے. 9. مدیر اب مدیر جا رہا ہے. شکرن یا شیخ. شکریہ تھینک یو شیخ. اس کو جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ اس نے لے لی ہے اور چل دیا. چلیے اب ہم تمارین پہ آئیں گے. ہاں تھینک یو سر. تمارین پہ آتے ہیں. اقرا وکتب ریڈ اینڈ رائٹ. ذرا پڑھیے آپ جلدی. کیا ہے یہ؟ ثلاثۃ طلاب. ماشاء اللہ. آگے بڑھو. نیچے اس کے نیچے اربعۃ طلاب. شاباش. خمسۃ طلاب. ستۃ طلاب. شاباش. ثمانیۃ طلاب. بہت اچھا. تسعۃ طلاب. عشرۃ طلاب. تو بتائیے مجھے, آپ نے اس کو پڑھا, معنی کیا ہے اس کا؟ پہلا پوائنٹ مجھے بتائیے. 3 طالب علم, 4 طالب علم وغیرہ وغیرہ, 10 طالب علم, اتنا ہے نا؟ شاباش. اچھا مجھے یہ بتائیے اس میں آپ نے کیا سیکھا؟ معدود بھی اور یہ عدد بھی. 3 سے لے کر 10 تک. 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہے آپ نے وہاں اس کی ایگزامپلز دیکھی. آپ نے یہاں اس کی ایگزامپلز دیکھی. شاباش. اب سب لوگ ہاں آپ سب لوگ خاموشی اختیار کریں گے. میں جس کا نام جو ہے پکاروں گا وہ ایک پڑھنے کی کوشش کرے گا. دیکھیے بھائی, کوشچن نمبر 2 ہے پھر سے. اقرا واکتب ریڈ اینڈ رائٹ. نمبر 1 ہے پہلا, یہ میں خود پڑھوں گا. پہلا ان دی میرے پاس ہے. خمسۃ کتب
खम्सतु कुतुबिन, क्योंकि मुझे पता है खम्सतु कुतुबिन 5 जो है, इसके बाद ये मादूद जो होगा ये जेर वाला होगा, 2 जेर के साथ, क्योंकि इल्फलाम भी नहीं है और जमा में पढ़ा जाएगा और इल्फलाम के बगैर पढ़ा जाएगा। तो मैं पढ़ूंगा इंदी खम्सतु कुतुबिन, मेरे पास 5 किताबें हैं, और सलासतु अक़लामिन, अक़लामिन 3 कलम है, मेरे पास 5 किताबें और 3 कलम है, और 3 कलम है। बहुत अच्छा। हम अब्दुल लतीफ साहब से बात शुरू करेंगे, जरा नंबर 2 पढ़िए। खालिदुन लहू सित्ततु सित्ततु माशाअल्लाह। अबनाइन, अबनाइन में अलिफ जो है हमज़तुल क़त्ई है, इसको पढ़ना पड़ेगा। सित्ततु अबनाइन 6 बेटे, खालिदुन उसके 6 बेटे हैं। खालिद के कितने बेटे हैं? खालिद के 6 बेटे हैं। शाबाश। अब हम नीलम अफरोज आप पढ़ें नंबर 3। कम अखन लका या आमिनातु, लका या लकी? लकी कम लकी। अखन लकी या आमिनातु ली अरबाअतु इखवातिन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माने क्या होगा? आप आमिना, ए आमिना आपके कितने भाई हैं? वो जवाब दे रही है मेरे 4 भाई हैं, मेरे 4 भाई हैं। अब आप अपने बारे में बोलिए। मैं नीलम अफरोज से पूछ रहा हूँ, अब आप अपने बारे में बोलिए। फॉर एग्जांपल आपके 3 भाई हैं, आप कैसे कहेंगे? ली सलासतु इखवातिन। बहुत अच्छा। ली सलासतु इखवातिन, मेरे 3 भाई हैं। बहुत अच्छा। चलो चलिए, हाँ नजीर अहमद साहब आप पढ़ें नंबर 4। फिल उसबुल सबअतु अय्यामिन। शाबाश। माने क्या होगा? फिल उसबुई सबअतु अय्यामिन, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शाबाश। यहाँ है एक और मेरे पास, अशरफ गैलेक्सी, जरा आप पढ़ें नंबर 5। कम रियालन इंदका अल आना या अम्मारो, इंदी अल आना समानियतु रियालातिन। माशाल्लाह, बहुत है। आप तो यहाँ आपका ये नाम जो है ये मेल नाम है, लेकिन आप सादिया शायद, सादिया है। हैं? अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा, आप सादिया हैं। अच्छा चलिए चलिए, बहुत अच्छा। कम रियालन इंदकल आना या अम्मार, अम्मार आपके पास इस वक्त कितने रियाल हैं? इंदी मेरे पास है अल आना इस वक्त समानियतो रियालातिन, 8 रियाल। समानियतो रियाल। और एक पॉइंट मैं भूल गया आपको बताना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए वो, अगर आपके पास पेन और का वो लिखिए। जब मैंने आपको बोला कि अगर मादूद मुज़क्कर है तो 3 से लेकर 10 तक अदद जो है वो मोनस लिखना पड़ेगा, अगर मादूद मोनस है तो वो मुज़क्कर लिखना पड़ेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। डू यू नो व्हाट इज इट? पैसों के बारे में, किसी और चीज के बारे में? हाँ जी, रियालात क्या लिखा है? समानियत और रियालात। देखिए यहाँ प्लूरल आता है ना, प्लूरल आता है, रियालातुन आता है, अस्दिकाउ आएगा, बुयूतुन आएगा, अय्यामुन आएगा, अबनाउन आएगा। लेकिन आपको मुज़क्कर का ख्याल नहीं, ये सॉरी आपको जमा के बारे में नहीं सोचना है, आपको इसके वाहिद के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो मुज़क्कर है या मोनस है। आप यहाँ वो कायदा नहीं लगाएंगे, चूंकि रियालातुन जमा गैर आकिल है, जमा गैर आकिल इज इक्वल टू वाहिद मोनस। तो वाहिद मोनस क्या नाम है, वाहिद मोनस होने की वजह से तो हम फिर समानियत उनको मुज़क्कर लिखना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस जमा जो आप गिन रहे हैं, इस जमा के वाहिद पर गौर करेंगे कि वो मुज़क्कर है या मोनस है। तो यहाँ जमा गैर आकिल का ख्याल नहीं आपको जहन में रखना है, वो तो उसको निकाल देना है।
रियालातुन, चूंकि यहाँ जमा गैर आकिल है, लेकिन हमें इसके ऊपर सोचना नहीं है, हमें इसके वाहिद पर सोचना है। रियालुन, रियालुन मुज़क्कर है तो समानियतुन मोनस आएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भूल गया था, इसको नोट कीजिए उन्हीं 3-4 पॉइंट्स के साथ जो मैंने लिखाए थे। क्या लिखना है अगर मादूद मोनस क्या ना, आप लिखेंगे मादूद के मुज़क्कर मोनस, मादूद के मुज़क्कर मोनस का तअय्युन, तअय्युन, हाँ तअय्युन, ते एन या नून या ते अन ये नून कोशिश पॉइंट बिल्कुल। तअय्युन, तअय्युन यानी उसको कैसे ये किया जाएगा, वाज़ेह किया जाएगा, इसको पॉइंट आउट कैसे किया जाएगा, उसके मुफरद शक्ल पर किया जाएगा, उसके मुफरद शक्ल पर किया जाएगा या मुफरद हैसियत पर किया जाएगा। जैसे ऊपर आया है सलासत अक़लाम। ये डेफिनेशन तो मेरे ख्याल से अरबी से मुश्किल हो गई है, क्योंकि हमारे साथ कुछ साथी हैं जो जिनने उर्दू बहुत पहले छोड़ी है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है मुश्किल अल्फाज को पढ़ना। तो आप यहाँ रियालातुन के बारे में नहीं सोचेंगे, आप इसके मुज़क्कर ये वाहिद शक्ल के बारे में सोचेंगे। इसकी वाहिद शक्ल है रियालुन, अरे वो तो मुज़क्कर है, बस इतना क्लियर हो गया, ये मुज़क्कर है तो समानियतुन मोनस आएगा। जी सर अभी समझ क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत यहाँ आप देखेंगे खमसतु कुतुबिन, कुतुबिन भी जमा गैर आकिल है, अक़लामुन भी जमा गैर आकिल है, ठीक है, अय्यामुन जमा गैर आकिल है, रियालातुन जमा गैर आकिल है, नीचे आप देखेंगे बुयूत, ये सारे आप देखेंगे, तो इनका ख्याल नहीं करना है आपको, जमा गैर आकिल इक्वल टू वाहिद मोनस नहीं लगेगा वो कायदा। चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं भट्ट साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़ें नंबर 6। जी, फी हाज़ल हय्य तिस्अतु बुयूतिन जदीदतिन, माशाअल्लाह, तिस्अतु बुयूतिन जदीदतिन, 9 नए घर हैं। फी हाज़ल हय्य, इस हय्य मींस मोहल्ले भी कहेंगे या इस लोकेलिटी में कहेंगे, इस लोकेलिटी में 9 नए घर हैं। हाँ, इलाके को कहते हैं मिंतक़तुन भी कहते हैं, बहरहाल उसको आगे हम देखेंगे। चलिए नंबर 7 को पढ़िए नजीर अहमद साहब। हाज़िही सय्यारतु अर्बअतु अब्वाबिन, नहीं, फिर से पढ़ो, हाजी है या लिहाजी? लिहाज़िही, एक मिनट, हाँ जी लिहाज़िही, हाँ जी हाँ, ये तो थोड़ा लिहाज़िही सय्यारति, लिहाज़िही सय्यारति अर्बअतु अब्वाबिन, अर्बातु अब्बाबिन, बहुत अच्छा, माने क्या होगा? इस गाड़ी के 4 दरवाजे। बहुत अच्छा, 4 दरवाजे हैं, शाबाश। अर्बातु अरबाबिन, अब्वाब का सिंगुलर है, बाब मुज़क्कर है तो अर्बातुन मोनस लिखा जाएगा। नंबर 8 शबी, चलिए अब्दुल लतीफ साहब आप पढ़ें। कुम समनु हाज़ल किताब, हाज़ल किताबी, शाबाश। समनुहु सबतु रियालातिन वनिस्फुन, शाबाश, रियालातिन। देखिए कम क्या है, ये कम समनु हाज़ल किताब, इस किताब की कीमत कितनी है? कम समनु हाज़ल किताब, इस किताब की कीमत है। असल में यहाँ आप सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने कहा था कम की ज़मीर, जो कम की तमीज़ आती है इस तरह, यानी वाहिद में आती है और ज़बर वाली आती है और नकिरा आती है, यहाँ क्यों नहीं है? ना तो समन के ऊपर पेश है, असल में यहाँ बीच में एक हरफ जो है वो ओमिट किया गया है, वो हज़फ किया गया है। असल में ये सेंटेंस है कम रियालन, कितने रियाल, या कम रुबियतन, कितने रुपये, कम कितने रुपये।
समनु हाजल किताब, इस किताब की कीमत कितने रुपए है। अब हम कश्मीरी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी ये कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बुक सेलर के पास गए, आप कहते हैं यह कैसे दियो, यह कैसे दियो, and he understands it that you are asking him the price of the book, you are asking him about the price of the book. तो आप इसके क्या यह कैसे दियो, इतने पढ़ अरबिक इसमें कम समनु हाजल किताब, कितनी कीमत है इस किताब की। कीमत मतलब कितने रियाल है इस किताब की कीमत, कितने रियाल, कितने रुपए हैं इसकी कीमत। तो वो यहाँ चूंकि हज़फ किया गया है इसलिए वो नहीं लिखा गया है। समनु हाज़िल किताब आ गया डायरेक्ट। फिर जवाब में समनुहु सबअतु रियालातिन, इसकी कीमत है, इसकी कीमत है कितने रियाल, 7 रियाल। व निस्फुन, और निस्फ यानी 7.5। बहुत अच्छा, 7.5 रियाल इसकी कीमत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नंबर 9। अब और कौन है हमारे पास? हमारे पास एक और है जिसका ये नाम नहीं है, IKPCOSS वगैरह कुछ है, लंबा ये लिखा है, आप जरा पढ़ें। في هذا الفصل 10 طلاب قدامى و4 طلاب جدد. ما شاء الله، ممتاز 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 اعجاز وانی ہے، چلیے چلیے، بہت اچھا بہت اچھا، بہت بہت بہترین طریقے سے پڑھا، تلفظ بہت بڑھیا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھا۔ زادک اللہ علما۔ فی هذا الفصل، اس کلاس روم میں 10 طلاب، 10 لڑکی، نقودامہ پرانے ہیں، 10 پرانے لڑکے ہیں، و4 طلاب جدد، اور 4 نئے لڑکے ہیں۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14۔ بہت اچھا۔ نمبر 10 آپ ہی پڑھیں ذرا، اعجاز صاحب آپ پڑھیں۔ کم قمیصا عندك یا ابراہیم عندی 8 قمصان۔ ہاں یہاں ہے بک پر 8 اور یہاں ہے 4، ہاں میرے پاس ہاں 4 قمصان، 4 شرٹس ہیں۔ آپ کے پاس کتنی شرٹس ہیں ابراہیم؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس 4 شرٹس ہیں، 4 شرٹس ہیں۔ نمبر 11 نیلم افروز آپ پڑھیں۔ عندي ريالان و5 قروش۔ قروشن، شاباش۔ میرے پاس 2 ریال، 2 ریال ہے اور 5 قروش کیا سر ہوتا ہے؟ قروش مینز 1/20 آف ریال، یعنی اس طرح بات ہم کہیں گے میں 20 رۄپیہِ چندس بیٚیہِ نہ سوری میں 2 رۄپیہِ چندس بیٚیہِ 20 پونٛسہٕ، 20 پونٛسہٕ۔ یہ قروش جو ہے قرشن جمع قروش، اٹ مینز 1/20 آف ریال، 1/20 آف ریال۔ یتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ وَنان ییٚتہِ رۄپیہِ تہٕ پونٛسہٕ مۄکلیے وٕ تہٕ أسۍ رۄپیہِ یوت وَنان، یِمن چھُ وٕنہِ ییٚتہِ قروشس ویلیو۔ یہ بھی ایک کرنسی کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ چلیے بہرحال نمبر 10، نمبر 12 اور 5 قروش ہیں، قرشن جمع قروش۔ نمبر 12 فی هذه الحافلة، اس بس میں، حافلۃ مینز بس، نوٹ کیجئے، نوٹ کیجئے۔ شباش، کیا حافلۃ کیا حافلۃ کیا ہوتا ہے؟ حافلۃ بس کو کہتے ہیں، حافلۃ بس۔ سنیے سنیے سنیے، حافل کہتے ہیں فیلڈ کو بھی، آپ کہتے ہیں تاریخ ان حوادث سے بری پڑی ہے تو آپ کہتے ہیں التاریخ حافل بهذه الحوادث، یا کہتے ہیں کتب التاریخ حافلۃ بهذه الحوادث، ان انسیڈنٹ سے، ان واقعات سے جو ہے تاریخ کوئی کتابیں بری پڑی ہیں، ریپلیٹ ود حافل۔ رکاب
रुकाब मीन्स पैसेंजर्स, राकिबुन जमा रुकाब, पैसेंजर्स, सवारियां। सवारियां। जी जी जी। फी हाजिल हाफिलते अशरतु रुकाबिन 10 सवारियां हैं। चलिए भाई 10 सवारी। 10 सवारियां, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपने इसको समझा? जी सर। अजीब जी सर, अनिलासिलती अलातियती, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए मुस्तामिलन इस्तेमाल करते हुए अल अदद अल मज़कूर बैन अल कौसैन। ये इस अदद को जो यहाँ ब्रैकेट्स में दिया गया है, इसने मिसाल देखी कही कम किताबन इंदा का, आपके पास कितनी किताबें हैं? जवाब दिया, यहाँ 3 लिखा था ब्रैकेट में, इंदी सलासतु कुतुबिन, कुतुबिन। सवाल में किताब वर्ड जो है इसको सिंगुलर इस्तेमाल किया गया, लेकिन जवाब में इसको प्लूरल इस्तेमाल किया गया, जवाब में इसको प्लूरल लिखा गया। शाबाश। अब इसी तरह नंबर 1 देखिए, कम अखन लका या हामिदो, हामिद आपके कितने भाई हैं? वो ब्रैकेट में है 5, तो वो क्या कहेगा? ली खमसतुन नहीं, खमसतु, ये खमसतु अख्ती खमसतु इख्वती, ली खमसतु इख्वती, इख्वतिन। शाबाश। ली खमसतु इख्वतिन, ली खमसतु इख्वतिन। नंबर 2, कम अमन लकी या लैला, लकी। शाबाश। आप जवाब दीजिए। ली वाहिदुन, कहाँ वाहिद है? ये तो 4 है। आपको अपने बारे में नहीं बोलना है, आपको ये डिजिट इस्तेमाल करना, नंबर इस्तेमाल करना है। ली अम्मानी, नहीं 2 कहाँ है? ये तो 4 लिखा है। ली अरबाअतु अमामिन, अमुन की जमात है अमामिन, ली अरबाअतु अमामिन। नंबर 3, कम इब्न लका या शेखो, सर आपके कितने बच्चे हैं? वो जवाब दे रहा है मेरे 6 बच्चे हैं। लिखिए, बताइए। ली सित्ततु अबनाइन, बहुत अच्छा। ली अबना, सित्ततु अबनाइन, अबनाइन। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कम सुआलन फी हाज़ा दर्स, इस लेसन में कितने क्वेश्चंस हैं? जवाब लिख रहा है 8, बताइए। फी समानियतु सवाल की जमा क्या आती है? ना, सवाल की जमा क्या आती है? अस्इलतुन, अस्इलतुन। वो उर्दू में है, वो उर्दू में है, उर्दू से बात करिए, आप अरबी सीख रहे हैं। कम सुआलन फी हाज़ा दर्स फीही समानियतु अस्इलतिन, अस्इलतिन, अस्इलतिन। ऊपर जो यहाँ देखा आपने, यहाँ नहीं देखा आपने, अल अस्इलतु, जी 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 जी, यही है, ये सवाल की जमा है, अल अस्इलतु। कम सुआलन फी हाज़ा दर्स, इस लेसन में कितने सवाल हैं? फीही समानियतु अस्इलतिन, इसमें 4 सवाल हैं, सॉरी 8 सवाल हैं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कम राकिबन फिल हाफिलते, बस में कितने पैसेंजर्स हैं? फीहा, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मोनस है। फीहा तिसअतु राकिबन, राकिबन नहीं, राकिबन की जमा क्या आती है? रुकाब। फीहा तिसअतु रुकाबिन, इसमें नाउ क्या है? नाउ पैसेंजर्स है। शाबाश। नंबर 6, कम रियालन फी जैबिक, आपके जेब में कितने पैसे हैं? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना? जब कोई आपसे पूछता है आपके जेब में कितने पैसे हैं, सब मुश्किल आसान। सबअतु रियालातिन, 7 रियाल हैं। फी जैबी या फी है सबअतु रियालातिन, रियालातिन, मेरे जेब में 7 रियाल हैं, 7 रियाल। नंबर 7, कम
समनु हाज़ल किताबी, कम समनु हाज़ल किताबी, इस किताब की कीमत क्या है? ये कहता है जवाब में 10 यानी 10 रियाल। तो हम क्या कहेंगे? समनु ثمنه समनुहु अमनहु समनुहु उसका कीमत अशरतु रियालात अशरतु रियालातिन, समनुहु अशरतु रियालातिन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हो गए 3 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। उक्तुब अल आदाद मिन सलासतिन इला अशरतिन, आदत को लिखो 3 से लेकर 10 तक। वजअल कुल्लम मिनल कलिमात अलातिया, और इन आने वाले इन कलमों में से हर एक को बनाइए मादूदन लहा, उसका मादूद, उसका मादूद। जरा किताब बनाइए, किताब को इस्तेमाल कीजिए 3 के साथ। क्या कहेंगे आप? सलासतु किताब, सलासतु किताब, किताबुन सलासतु किताबिन या कुतुबिन? कुतुब, ثلاثة كتب कुतुबिन, बहुत अच्छा। कलम उनको 4 के साथ लिखिए। अर्बाअतु अक़लाम, अक़लामिन, माशाअल्लाह। अच्छा, 5 को ताजिर के साथ इस्तेमाल कीजिए। खमसतु जारी तुज्जारिन, खमसतु तुज्जारिन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुज्जारिन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और 6 को रजुल के साथ इस्तेमाल कीजिए। सबअतु रिजाल, सित्ता सित्ता रिजालिन सित्ततु रिजाल सित्ततु रिजाल नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आप ठीक कह रहे हैं। रिजालिन, सित्ततु رجال रजुलन की जमात है रिजाल, शाबाश। रिजालिन, सित्ततु रिजालिन, सित्ततु रिजालिन। अच्छा, रिजाल, वही बोल हाँ हाँ, सित्ततु रिजालिन, शाबाश। तालिब को 7 के साथ इस्तेमाल कीजिए। तबातु तुल्लाब समानियत, हाँ, साबतो, या अगर 7 कहेंगे या अगर 8 कहेंगे तो समानिय तो आएगा। बहुत अच्छा। अब 8 को इस्तेमाल कीजिए रियाल उनके साथ। समानियतु रियाल, रियालात रियालातिन, रियालातिन, बहुत अच्छा, मुमताज मुमताज, बहुत अच्छा। और किरशुन को इस्तेमाल कीजिए 5 के साथ। खमसतु कुरूश, कुरूश, खमसतु कुरूशिन, खमसतु कुरूशिन, बहुत अच्छा। कुरूश, अखुन को इस्तेमाल कीजिए 3 के साथ। सलासु इखवात, सलासतु बातिन, सलासतु सलासतु इखवतिन, इखवा वा जबर वा, इखवतिन, सलासतु इखवतिन, सलासतु इखवतिन, बहुत अच्छा, सलासतु इखवतिन। और इब्नुन को इस्तेमाल कीजिए 6 के साथ। समानियतु अबना इन समानियत हो गया 8, समानियत हो गया 8, मैंने कहा 6 के साथ। सित्ततु अबनाइन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सित्ततु अबनाइन, सित्ततु अबनाइन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। अब आइए भाई, इस लेसन में अब हमारे पास सिर्फ कलिमात जदीदा है। ये कलमे जो है, आपको नए कलमे जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इनके माने अगर आप लिखने की अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपको बताता हूँ। असमनु कीमत कीमत, प्राइस, 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 शाबाश। असमनु मीन्स कीमत या प्राइस। निस्फुन मीन्स نصف आधा आधा, हाफ। अर्रियालो जमा रियालातुन मीन्स रियालात यानी अरब की करेंसी। शाबाश। अलहाफिलतु जमा हाफिलातुन, बस, बस। बस, और हाफिलातुन के दूसरे माने क्या है? भरा हुआ, बड़ा बड़ा, रिप्लीट विद, फिल्ड विद, शाबाश। अस्सुआलु जमा अस्इलतुन मीन्स सवालात सवालात बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अलबलदु जमा बिलादुन, शहर, शहर नहीं शहर नहीं, शहर नहीं, मुल्क, मुल्क, मुल्क हाँ, मुल्क। जब हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेट्स, तो स्टेट्स का मतलब होता है
कभी पॉलिटिकल साइंस में हम ये इस्तेमाल करते हैं, स्टेट्स मीन्स वहाँ कंट्रीज है, स्टेट्स मीन्स कंट्रीज कभी कभी हम कहते हैं। और शहर को कहते हैं मदीनतुन, शहर को क्या कहते हैं? मदीनतुन। और करियतुन को कहते हैं गाँव को, करियतुन कहते हैं गाँव को, गाँव को, करियतुन कहते हैं गाँव को। शाबाश। लेकिन कुरान में ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हुआ है, कभी गाँव वालों को शहर वाले कहा गया, कभी शहर वालों को गाँव वाले। उसकी एक वजह बलागत के उलमा कहते हैं कि कुरान ने उस जगह ख्याल रखा है जो लोग मुहज्जिब और डिसेंट है वहां उनको शहर वाले कहा है, जो लोग उजड़ हैं ना समझ हैं उनको वो गाँव वाले, वो ताना जैसा दिया है वो। लेकिन वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कभी, तो वहां मैं वो सिखाऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको। उरुबा मीन्स यूरोप, फरंसा फ्रांस, मुख्तलिफतुन मुख्तलिफ, मुख्तलिफ ये तो पता है। अल-यौम और जमा अय्यामुन दिन, दिन। लेकिन जब आप दिन को यानी यौमुन को अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे, जैसे इसने यहाँ किया अल यौम, अगर आपने अल यौम की मीम के ऊपर पेश लगा दिया तो फिर ये मतलब है दिन जमा अय्याम। अगर आपने इसके ऊपर जबर लगा दी अल यौम तो इसका मतलब होगा टुडे, आज का दिन। जैसे कुरान में है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने आपका दीन आपके लिए मुकम्मल कर दिया। अल यौम यइसल लज़ीना कफरू, आज के दिन वो लोग ना उम्मीद हो गए जिन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया। ठीक है ना? जी सर। अगर आप उस वक्त इसको बतौर ज़रफ़ इस्तेमाल करेंगे और मीम के ऊपर जबर अल यौमा लिखेंगे। हाँ शाबाश। अल किर्शु जमा कुरूशन, करेंसी, एक मतलब 1/20th ऑफ रियाल, 1/20th ऑफ रियाल। शाबाश। राकिबुन जमा रुकाब, सवारी, सवारियां, बहुत अच्छा। कदीमुन जमा कुदामा, पुराना, शाबाश शाबाश। अल जैबु जमा जुयूबुन, हेलो सर। हाँ जी। अल खुश को हम खुम्स भी कह सकते हैं, खुम्स। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अल कुरुश को हम खुम्स भी कह सकते हैं, खुम्स। खुलुस, खुम्स खाई, खुम्स मैंने खुम्स, अच्छा नहीं, हाँ खुम्स तो वो अलग बात है भाई, वो तो आप लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आपने उस करेंसी का नाम याद क्या मतलब रखा क्या है। देखिए अरबिक वहाँ दो करेंसी हैं, एक है रियाल, दूसरा है किर्श। ठीक है, फिर हम कीमत बता रहे हैं आपको। रियाल मीन्स फॉर एग्जाम्पल 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, और 1 फॉर एग्जाम्पल आपके पास करेंसी जो है, आपके पास 10 पैसे की करेंसी भी है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको हम 20th कहेंगे, 5th कहेंगे या 10th कहेंगे, हम ये कहेंगे ये 10 पैसा है। जैसे हम आप जानते हैं, ये जो हमारे साथ जो हमसे कम उम्र के हैं उनको शायद नहीं पता होगा, ऐसे इसमें नाम 4 आन 8 आन। ठीक है, वो दैट वाज अ यूनिट, वो करेंसी थी आपके पास। इस तरह किरशुम जमा कुरूश है, इसी तरह एक जैसे मानिए आप टिकिया है, जैसे इत पे 8 आन आसान या 4 आन आसान, ये हुत पट कि हम इसको कह सकते हैं, हम इसको खुमुस कह सकते हैं, मगर उस करेंसी का, उस यूनिट का नाम अरब के लोग किरश रखते, किरश उन्होंने रखा है। तो आप उसको ये नहीं कहेंगे मुझे खुमुस दे दीजिए, आप उसको कहेंगे इंदी, मिसाल इंदी अरबअतु कुरूश, मेरे पास 4 ये कुरूश टिकिया जो है मेरे पास ये 4 है। थैंक यू सर। ओके जी। अलजैबु जमा जुयूबुन, अलजैबु हाँ जमा जुयूब, पॉकेट। बहुत अच्छा। अल्मानिया, जर्मनी, अल यूनान, ग्रीस सॉरी मलेशिया,
बहुत अच्छा। इन मुल्कों के नाम आपको चूंकि ऑलरेडी इंग्लिश में याद है, लेकिन अरबिक में भी उनको याद कीजिए और वोकैबुलरी अपनी बढ़ा दीजिए, वोकैबुलरी बढ़ा दीजिए। जितनी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग उतनी अरबी आपकी स्ट्रांग। समझ रहे हैं ना आप? दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड वर्क ऑन। चलिए हमारे पास अब कुछ मिनट रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज लेसन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो गया और मेरे ख्याल से जो शाम में क्लास पढ़ाते हैं हम उनसे बहुत आगे हैं, क्योंकि कल मैं शायद देख रहा था कि वो शायद अभी 10th लेसन पर है। हम तो 19 हमने कंप्लीट किए हैं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कहेंगे आगे दौड़ और पीछे छोड़। आपने पीछे जो इसको रिवाइज भी करना है और उम्मीद है कि आपको वहाँ क्वेश्चंस खड़े होंगे, सवालात होंगे, कुछ चीज समझ में नहीं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं मुझसे यहाँ भी, और फोन के जरिए भी आप पूछ सकते हैं कि फलां जगह जो है हमारा ये पॉइंट है, ये समझ में नहीं आया, जरा इसको फिर से बताइए, इस चीज की माने बताइए, इस सेंटेंस की माने बता दीजिए। तो इंशाल्लाह ताला वो क्लियर हो जाएगा और आप आगे आएंगे। मुझे उम्मीद है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इंशाल्लाह ताला जो शाम की क्लास है उसके मुकाबले में आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ज्यादा मेहनत नहीं, क्योंकि आपके जवाब देने का जो तरीका आज मैंने देखा और इससे पहले भी, तो उससे लग रहा है कि बहुत चीजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो है बहुत चीजें अच्छी तरह समझी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज के लेक्चर को यहीं खत्म कर रहे हैं। सर एक मिनट सर, जो तालिबान अफगान तालिबान नाम क्यों लिखते? वो उर्दू है, वो उर्दू है। जैसे आप कहते हैं मुसलमान कश्मीर, वो भी वहाँ अरबी तालिबान नहीं है, वो तालिबान है मीनस तालिबानी हक, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तालिबानी हक मीनस ये नहीं माने है कि हक के दो ढूंढने वाले, इसका मतलब है हक के ढूंढने वाले। सर वो अरबी उर्दू लफ्ज है, वो उर्दू लफ्ज है, हाँ वो उर्दू है। लफ्ज तो अरबी ही है असल में, लेकिन इस्तेमाल जो है उर्दू है, इस्तेमाल उर्दू है। जैसे एक लैंग्वेज से जब कोई कलमा दूसरी लैंग्वेज में आता है तो कभी कभी उसका माने भी चेंज हो जाता है, कभी कभी उसके जो है जो उसकी इम्प्लीकेशंस है वो भी चेंज हो जाती हैं। तो इसमें आप वो सोर्स लैंग्वेज की उसका कोई कायदा वहाँ नहीं लगेगा। आप उस तालिबान के बारे में अरबी कायदा नहीं लगाएंगे, आप उसको उर्दू कायदा ही लगाएंगे। जी ओके जी, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, टेक केयर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।